Welcome everyone to this podcast. So today we are going to talk to a person who is a musician, who is a writer, who is a teacher, who talks about metaphysics, who talks about parallel universe, and who is an NRI advisor, and he is a program manager at Google also. So welcome Gautam Dharji to our podcast. थैंक यू नमस्कार आज आपको अपनी ज़िंदगी के सारे राज खोलने हैं हमारे सामने। जी ज़रूर मेरा नाम जैसे आपको पता है गौतम गौतम धर है एंड आई बिलोंग टू ए कश्मीरी पंडित फैमिली आई वाज born in Haryana because my father had moved out of Kashmir in the 60s. Basically, they went to Bombay in 40s. My grandfather went to Bombay in 40s अच्छा, and he had a huge sprawling business. He used to hang out with the movie stars like Jeevan and Lalita Pawar in the Taj Mahal Hotel in Bombay ओके, before he became bankrupt and then moved back to Haryana and unfortunately had to take up a job. So by the time I came about, it was in Haryana, jahan pe my father was working in escorts so he was in the automotive business for most of his life. ओके, So I was born in a place called Hisar in Haryana, या, and I have one elder brother. I spent, I think, about between 2 to 3 years moving from Hisar to Meerut, and then eventually we settled in a place called Rohtak, which is about 60 miles from Delhi. या, वहाँ पे I spent most of my actually all of my 18 Childhood. years, Yeah. all the way from kindergarten to high school. एंड उसके बाद आपने क्या प्लान किया आगे पढ़ाई का? उसके बाद there was an interesting turn of events. In about 1998, my father got an invitation to emigrate out to US with the entire family, but there was some legal thing regarding the age of 21. So I have an elder brother, Yogesh. तो उसकी एज जो है 21 से ज़्यादा हो गई थी, तो ही वॉज नॉट एलिजिबल टू गो एंड दिस वॉज अ ग्रीन कार्ड. तो माई फादर सेट कि बेटा ऐसा है, योगेश इज़ नॉट एबल टू गो and it's a golden opportunity. I think you should go. He never forced me, so I always wanted to join the Indian Army. या, A lot of my friends joined up. I always had a passion to join up also, but it's another story. मेरा NDA clear नहीं हुआ because of poor science. So I thought चलो ठीक है. तो एक साल I hung around in the local university, and उसके बाद in 1999 I flew out of Haryana, so straight from Rohtak to US. तो फिर द प्लान वाज टू स्टडी इन यूएस. The plan was, my father said, you'll end up there and then you figure it out. या, Because in US, college education is very expensive. Very expensive. Very expensive. या, So unless you are very rich, if you're not, then you have to work like 2 to 3 jobs. So when I went there, since I was on green card, I had the opportunity of being eligible for the federal government aid. या. तो मेरे को वो थी. I had full scholarships all throughout 4 years of college. यूएस पे कहाँ गए थे आप? US में I went to, initially I went to a place called Troy. ओके, Troy was where my aunt was based. Troy is near Detroit. Most people know Detroit. ओके, उसके बाद in about 2 months, I moved to a place called Lansing, which is the capital of Michigan. ओके, So Michigan is where my father's 2 sisters और मेरे एक चाचा जी, so 3 of them had been living for last 50 plus years. ओके, So they came in early 60s. तो वहाँ पे मैं गया. The goal was to work my ass off. So I had 3 jobs and then I was taking classes throughout the day. So the tuition is very expensive. Books Yeah. are very expensive. I Yeah. still remember when I walked into a bookstore, used bookstore. Nobody buys new books in colleges in US. तो मैंने जब उसका लेबल देखा, उस पर लिखा था $65 and my heart immediately sank. मैं immediately उसको convert किया. उस time I think $1 was about 42 rupees. मैंने कहा यार हम 50 रुपए की टेक्स्ट बुक खरीदते थे, यहाँ 2000 रुपए की. But anyways, so it was a hard life, but I'm glad I had it. Obviously, I had finished my high schooling. So the goal was first of all to finish undergraduate. तो वहाँ पे 4 साल की है, जैसे इंडिया में 3 साल की है. तो that I had to figure out. Obviously, as I said, मैं पहले ट्रॉय गया, then I moved to Michigan. तो वहाँ पे I attended Michigan State University. ओके. सो व्हाट डिड यू डू वहाँ पे मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में? वहाँ पे I did obviously business administration and pre-law. बीबीए. हाँ. तो that was my first degree. अच्छा. And during that time, I was working in a store.
Then I also had a job in the admissions office in the college that I was attending. At one point, I had 3 jobs. Then I moved to 2 jobs because it was very hectic. Sometimes I would leave at 6 a.m., attend classes, walk, then classes again. Or by the time I came back home, तकरीबन 11 बज चुके होते थे. But you get paid well. No, you don't get paid well. These Yeah. are part-time jobs. हाँ. So you get paid Per beans. hour. हाँ, you get paid beans, peanuts basically. Yeah. And my father did not send me any money. He could not send rather. तो मेरे को कभी मैंने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगे कि पापा पैसे भेज दो, बिकॉज ऑब्वियसली ही कुड नॉट अफोर्ड Hmm. because of 1:42 ratio, right? So all my 4 years, all my rent, all my tuition, all my books, I was supporting myself. Okay. अच्छा, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन खत्म किया, उसके बाद? ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद मैंने मिशिगन में ही था मैं, Hmm. और वहाँ पे आई जॉइंड अप इन ई लर्निंग कंपनी. Okay. 2007 में आई टुक अ ब्रेक अबाउट 6 months. I came back to India. I packed up all my stuff, stored it away at my aunt's place. And the goal was to help my parents. उस टाइम कुछ चल रहा था कि they wanted to move out of Rohtak where they were living to maybe Dehradun और जहाँ पे भी है. So I took a break for about 6 months. I also explored employment in India. It didn't work out. Then I went back. That was the peak of recession time in US. Yes, 2008. That's when I started applying for jobs. I remember I applied for about 100 plus jobs, and I got only 2 offers. One was from Reuters, one was from Google. This is all pre-smartphone era, right? And I thought it's time to broaden your horizons. So you joined Google. I joined Google in their main office in California. You used to pay well? Google, let's say Google still does, and back then also it used to take care of its employees because Google was known as an employer, where there was salary and then there was a slew of an array of other things. हाँ, but then see, हम लोगों को ज़्यादातर तो it is money which gets, Right. so वैसे Money was good. good, yeah. Yeah. तो recession का कोई ऐसा effect नहीं था? Recession का effect था for people who were applying. For instance, I applied for 3 months. I got no call back, no offers. In between, I moved back to New Jersey on the East Coast for about, I think, 3 days. अच्छा. Us time the things were so desperate that I emailed my father. I clearly remember, and I said, यार job नहीं मिल रही है. तो and my father has a very interesting, he has a very interesting mindset. All he said, I remember, I have all those emails saved up. He said, खाने के लिए दाल रोटी will never end, right? If it works out, fine. If it doesn't work out, you can always pack up your bags, and like the English song goes, you can always come home. That's what his advice was. But luckily, I remember it was Vivekanand Jayanti and also a Kashmiri festival called Sahibi Satam. साहिब So सतम. that was the day when I think I flew to California to interview for Google. So stars were aligned and it worked out. तो बताओ कि वहाँ पे लोग कैसे थे और लाइक कैसा माहौल था जब आपने उस टाइम गूगल ज्वाइन किया 2008 में, जब दुनिया रिसेशन पे जा रही थी? See, मेरे लिए it was still very new. I would say it was a novel experience. How old were you at that time? I joined Google. एज बतानी पड़ेगी? जो लोग हैं नीचे कमेंट में बताएं कि आपकी एज क्या है, बिकॉज आई वाज शॉक्ड व्हेन आई गॉट टू नो योर एज. तो व्हेन आई जॉइंड गूगल इट वाज ऑब्वियसली माय फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब, जिसमें आपको यू आर वर्किंग विद कॉलीग्स अक्रॉस द ग्लोब, फ्रॉम चाइना टू कोरिया टू जापान टू सिंगापुर टू ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया, वो सब नहीं मैंने देखा था. तो इट वाज अ वेरी नॉवल एक्सपीरियंस. यू वर एक्सपोज टू टेक्नोलॉजी जो आपने पहले नहीं देखी थी, स्पेशली नॉट इन मशीन. गूगल वाज cutting edge technology. So I worked with some of the smartest people. Yeah. I worked with corporates as my clients. I worked with the US Army. अच्छा. There were very different interesting products. आपने एक product सुना होगा, Google Earth. Yeah. Google Earth has now integrated into Google Maps. Back then it was an enterprise product also. अच्छा. So there were times when I was on an escalation call with a commander sitting in an undisclosed location, probably in Afghanistan or somewhere. Okay. So काफ़ी interesting था. I spent about 4.5 years working across different roles in Google Mountain View, which was the main office. Yeah. So it was enlightening. तो सबसे बढ़िया कहानी बताओ, गूगल की सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया था, किस प्रोजेक्ट में या ऐसा कुछ? I think so I worked a lot on Google Maps Okay. and Google Earth. And I also worked on search products. जैसे अगर आप कभी बड़ी बड़ी साइट्स पे जाओगे, जैसे डिस्कवरी हो गया, नासा हो गया, राइट? तो जब आप
सर्च करते हो उनकी साइट पे तो दो सर्च रिजल्ट्स आर पावर्ड बाय एक्चुअल हार्डवेयर. Okay. उसका नाम होता था गूगल सर्च अप्लायंस. तो I worked on those units with an array of different clients, worked with sales teams, worked with account managers, worked with internal teams. I think एक interesting most interesting मेरा जो रहेगा वो गूगल अर्थ ही रहेगा, because गूगल अर्थ was very new. उससे पहले ऐसा कुछ था नहीं. उससे पहले एक प्रोडक्ट होता था जो आई डोंट नो किसी ने सुना भी होगा. इट वाज कॉल्ड Whirlwind. इट वाज रिलीज्ड बाय नासा अच्छा. एंड द फाइल वाज अबाउट 1 GB. अच्छा. मुझे अभी भी याद है जब मैं मिशिगन में था, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. मैं सुबह सुबह एक दिन ऑफिस पहुंचा, मैंने कहा यार ये डाउनलोड करके देखना है क्या चीज़ है. और उन दिनों घर में इतना तेज इंटरनेट नहीं होता था इवन इन मिशिगन. Yeah. तो दैट फाइल वाज फ्रिकन सो ह्यूज, वो डाउनलोड ही नहीं हुई. तो व्हेन आई रीच्ड गूगल, मैंने कहा यार, एंड बाय देन Whirlwind हैड डिसअपीयर्ड. नाउ एवरीबॉडी यूजेस गूगल अर्थ टेक्नोलॉजी. तो गूगल अर्थ में आई वाज ऑन दिस कॉल अगेन विद दिस personnel from the US Army. And I worked with Raytheon. You know, Raytheon is one of the largest defense contractors in US. Okay. I cannot get into the details of the call, Of course. but just to be on the same call with some of the top honchos of US Army and people from Google, and the value I was adding, I think it was भाई अच्छा लगा. जैसे राहुल हाँ, गांधी it was कहता ना, so- मजा आ गया. तो मजा आ गया. हाँ, it would be so satisfying. It was indeed. Yeah. कितने लोग काम कर रहे थे गूगल मैप्स पे वहाँ पे उस टाइम पे? Hard to say. I can't get into the number, but hundreds and hundreds of people. Yeah. हाँ, 9/11 के टाइम आप वहीं पे थे, राइट? 9/11 के टाइम में वही था. तो वो बताओ उस टाइम, क्योंकि वो तो थोड़ा सा इन डेप्थ बात करनी पड़ेगी उसके बारे में. हाँ, see, it's very surreal कि 9/11 happened more than 20 years ago. Two Yeah. freaking decades have Yeah. gone by. So I remember उस टाइम में एडमिशन्स ऑफिस में काम करता था. September 11th 2001. तो वो तकरीबन 8:30 बजे I was walking into the admissions office after my morning class, or maybe before it, I don't know. तो everybody was, as you would have seen on the news, was glued to a TV. तो मैंने कहा भाई क्या हो गया. तो people said कि planes have collided with the World Trade Center. ओके. दे थॉट कि एक्सीडेंट हो गया पहले. The people were talking, right? People, there was shock, there was disbelief, usual emotions. So that was my first arriving on a scene. It was like right out of a movie. There are hundreds of movies जिसमें 9/11 feature हो चुका है. उसके बाद for many days people would be glued to their radios or to news कि क्या हो रहा है. Airspace was shut down. You know, George Bush, who was the president back then in US, he went and spoke about terrorism. Matlab, the whole Afghanistan war started, and I closely followed that, I remember. Yeah. So it was very, I would say, unprecedented था. Yeah. उसके बाद see everything changed. Air travel changed, airports changed. वर्ल्ड चेंज. सब कुछ change हो गया. आई स्टिल रिमेंबर जब मैं एक बार घर पे बैठा था, छोटा था तब मैं. हम बैठे हैं घर पे और अचानक मेरे पापा का फ्रेंड है, हमारे नेबर ही है. He just barged in our house and said, अरे ये क्या हो गया, अमेरिका पे हमला हो गया, अमेरिका पे हमला हो गया. Yeah, और it टीवी was very ऑन किया और वही बिल्डिंग पे धुआं निकल हाँ, रहा it है was और ये very सब, yeah. gut wrenching. So that way, you know, बट अमेरिका को समझ में आ गया कि अब एक्चुअल टेररिज्म क्या होता है, और उनको अब दिखा था उस टाइम पे, राइट? हम हाँ. जैसे बाकी दुनिया बोलती थी, उनको फर्क नहीं पड़ता था कुछ भी, See, राइट? उससे पहले हुआ था एक अटैक हुआ था नॉट ऑन दिस in a स्केल. place called Waco, Texas, but that was an American. He ओके. was a US Army veteran, I believe. अच्छा. Timothy McVeigh. I still remember the name. He was executed. तो उसने एक ब्लास्ट किया था, but that was domestic terrorism. तो international terrorism, especially ये जो Islamic terrorism, quote unquote, I think this was the main event, and many things unfolded after that. Yeah, उसके बाद actually काफ़ी चीज़ें हो गई. Racism attacks. There were a lot of attacks on Indians, a lot of attacks on Sikhs, Arabs, of course, Muslims. I mean, Someone who is like he was close to you, who faced all these things. see, पर्सनली मेरे को कभी फर्क नहीं पड़ा. Like, मे बी कुछ फर्क नहीं, कुछ कभी आपको मेरे को ना कभी मैंने देखा. मे बी बिकॉज आई डोंट हैव द टिपिकल इंडियन लुक्स. मे बी सम पीपल कंफ्यूज मी विद एन ओरिएंटल पर्सन. यू नो, आई हैव स्लाइटली ओरिएंटल लुक्स. स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट द ओरिजिन फॉर दैट. बट हाँ, ऑब्वियसली काफ़ी न्यूज़ में पड़ा था, स्पेशली कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में. देयर वर लॉट ऑफ अटैक्स ऑन Sikhs. yeah, They probably confused them with Arabs and all that. Arabs and all. So, Have you seen New York? I've been to New York, yes. नहीं, have you seen the New York film?
Oh, जॉन अब्राहम वाली. हाँ, जॉन many अब्राहम, times. है ना? Yeah, yeah. ऐसा कुछ था, ऐसा That ही is हुआ actually होगा? one of my favorite movies. हाँ हाँ, ऐसे काफी लोगों को उन्होंने Yeah. उठाया था. Actual में ना? Because I think क्या नाम था उसका, पेट्रियट एक्ट जब पास किया था Hmm. यूएस में, उसके बिना पे they could pick up anybody Yeah, based on suspicion. It was called detention. You're not arrested and you were being picked by Homeland Security, I believe, and a group of other security agencies. आपको पुलिस नहीं उठा रही है, पुलिस का कोई लेना देना नहीं था, and they could withhold you and they could ship you anywhere and nobody Yeah. would ever find out. तो ऐसे बहुत किस्से होते हैं, वो बिल्कुल ठीक दिखाया है. तो मतलब it was a hard time at that वहाँ It was पे. a very hard time. हाँ, a lot of people were affected. A lot of people were killed. A lot of people lost their lives. एक पूरा जो intercultural dynamic था ना, वो change हो गया उससे. They will be all messed up in their heads कि क्या हो गया हमारे साथ. तो गुस्सा, frustration वो कहीं पे तो निकालनी थी कि मतलब अगर आप पे See, government swung into action. Government बौखला गई. बौखलावा, They had बौखला is the no word, way yeah. of finding out कि क्या हो रहा है. There are a lot of conspiracy theories on 9/11 Yeah, which we yeah, will not yeah. get into. Yeah. But हाँ, there was a lot of unfair judgments being passed. खाली आपके appearance के basis पे you were Yeah. picked up. Which is so wrong. हाँ, lot of movie stars. I mean, हमारे Bollywood की भी आपने news पढ़ी होगी. A lot of movie stars were stopped at the airport, grilled for hours and hours and hours. तो फिर यूएस में आप उस कितनी देर के बाद नॉर्मल होगी चीजें? See, time तो मैं नहीं देना चाहूँगा उसको, but हाँ, it took some years definitely. decent time. Because जब अफगानिस्तान war start हो गई, that went on for a long time. A lot of resources were plugged in. Yeah. लोग काफ़ी इमोशनल हो गए थे, राइट? Yeah. एक्चुअल अमेरिकन्स जो थे, नॉट वाइट अमेरिकन्स. तो देयर वर लॉट ऑफ इमोशन इन पीपल, एंड अमेरिकन्स, this is a very biased statement by the way, but I always felt during my stay in the states, जो average American है, he or she is very proud of their country, which I unfortunately never could see in our own country. मतलब right from the little things called, मतलब जैसे आप अपने यार्ड में आपने फ्लैग लगा रखा है. इट इज़ नॉट कि आप 15 अगस्त आ गए और आप ट्रैफिक लाइट पे एक छोटा सा फ्लैग खरीद के डैशबोर्ड पे लगा दे और 4 दिन बाद उसको कचरे में डाल दो. It's always there. वैसा नहीं था. आई मीन, पीपल ट्रूली फेल्ट कि दिस इज़ माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन अमेरिकन, दिस इज़ माई कल्चर, XYZ. So there's this theory that back in World War time, a lot of money was pumped into the Hollywood by US government for its branding. आप जब भी देखोगे US की ब्रांडिंग बड़ी सॉलिड होती है हमेशा, है ना? तो वो भी एक रीज़न है कि उनके दिमाग खोल के ना उस पर ठूसा गया है US, सबसे अच्छी कंट्री US, सबसे पावरफुल कंट्री US, सबसे बड़ा डिफेंस बजट US, सबसे बढ़िया इनोवेटिव चीज़ें कहाँ से निकलेंगी US, है ना? तो दैट वे इट्स बार्ज्ड इनटू पीपल एवरी टाइम दैट US इज़ द बेस्ट प्लेस. एलियन अटैक भी सिर्फ US पे ही होता है और कहीं पे भी नहीं होता है. सब बढ़िया चीज़ें सिर्फ USA में होती है. सो इट्स ऑलवेज अ गुड फीलिंग व्हेन यू हैव गुड थिंग्स अबाउट यू एंड यू फील स्ट्रॉन्गर अबाउट दोज थिंग्स. सो आपको क्या लगता है, ऐसा है? So you spoke a lot of things. I'm not sure if I agree with all of it. I think in general, an average American, right? An average American will not spit on the road. An average American सड़क पे जाके कूड़ा नहीं फेंकेगा. An Correct. average American will not turn away अगर सड़क पे कोई bleed कर रहा है. Correct. I agree to There that. are a lot of differences. These are not cultural differences. Yes. These are evolutionary things. Correct. ठीक है. This has to do with scale. इंडिया में there are कितना 2 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं शायद. नहीं यार, 2 Sorry, बिलियन नहीं है. जितना भी 1 बिलियन से ज़्यादा. 1.4 ऑफिशियली. Sorry, 1.4 वो ये billion. शायद चाइना को ओवरटेक कर लिया. हाँ, सबसे चाइना को बड़े ओवरटेक कर लिया. तो स्केल हैज़ अ रोल टू प्ले इन इट. Of अमेरिका में लोग कम हैं, बट रिसोर्सेज है, बजट ज्यादा है. रिसोर्सेज हैं. सी, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन डायनामिक्स. उनका अपना अलग कल्चर है. मे बी सम पीपल आर ब्रेन वॉश्ड. वो हर एक सी, एवरी कंट्री में हर तरीके के लोग होते हैं. करेक्ट. बट जो पॉजिटिव है वो है. फिर आप यूएस से इंडिया आ गए और यहाँ पे आके आपने गूगल हैदराबाद ज्वाइन किया था. वो भी एक किस्सा है. किस्सा है. हाँ. किस्सों की कहानी सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पे. तो बेसिकली क्या हुआ, जब मैं वापस आया तो व्हाट ईयर वाज दैट? दिस वाज 2012. पापा ने बोला कि चल यार ज़रा बद्रीनाथ और इधर उधर चलते हैं. मी एंड माई फादर.
ऑब्वियसली मैं उस टाइम ड्राइव नहीं कर पाता था, तो माई फादर वुड बी ड्राइविंग थैंक्स टू हिज ऑटोमेटिक कार। तो तकरीबन उसी ट्रिप के दौरान आई रिमेंबर आई वाज इन जोशीमठ, जो बद्रीनाथ से पहले आता है। तो जोशीमठ में मेरी डायरेक्टर ने मुझे ईमेल किया, जो यूएस में मेरी डायरेक्टर थी। उसने बोला कि एक अच्छी पोजीशन ओपन हुई है हैदराबाद में, वुड यू कंसिडर ज्वाइनिंग बैक। जब गूगल आपने यूएस में छोड़ा था, सो आपने आई लाइक रिजाइंड रिजाइंड सेइंग व्हाट, आई I have to रिजाइंड go back. हाँ, मैंने बोला मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ। So did they say कि यार इंडिया में ज्वाइन कर लो अपने को? बोला था, बट आई सेड Let's see. मेरा मेन रीजन था आई वांटेड टू टेक एटलीस्ट 2 years ऑफ इन ट्रैवलिंग, Okay. टीचिंग, वॉलंटियरिंग एंड नॉट अर्निंग। माई गोल वॉज टू नॉट वर्क फॉर मनी। Okay. अच्छा So I said, sayonara, it's been nice working with you. We'll cross our paths again if अगर ऐसा है, किस्मत में लिखा है तो देखते हैं. तो उसने बोला कि ऐसा ऐसा है। तो पापा ने भी बोला यार ये वॉलंटियरिंग तो होती रहेगी, तू कर ले, ये गूगल इंडिया तेरे को हायर कर रहा है। एंड शी एग्रीड टू हायर मी विदाउट एन इंटरव्यू। फर्स्ट डे जब मैं गया, एंड उस दिन मेरे बैच में मैं ही ज्वाइन कर रहा था। आई डिड नॉट ज्वाइन एज पार्ट ऑफ अ बैच बिकॉज उसने मुझे विदाउट इंटरव्यू हायर किया था। तो वहाँ पे लगा हुआ था वेलकम गौतम धर, अच्छा. गूगल हैदराबाद, ये ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ मिस्टीरियस चीज़ें हुई उस दिन। मुझे याद है कि एक तो आई फेल्ट सो आउट ऑफ स्पेस। मुझे लगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये अभी मैं यही करा मैंने 10 साल, मैं वापस मैं इसी में आ गया हूँ। एंड टोटली डिसरिगार्डिंग जो मैंने प्रण किया था ना, भीष्म प्रतिज्ञा मैंने जो ली थी यूएस छोड़ते टाइम, मैंने कहा यार फिसल गया। तो उस दिन क्या हुआ कि उस दिन मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेजा वू एक्सपीरियंस हुआ। यू अंडरस्टैंड व्हाट डेजा वू इज? Yes, I do. मुझे लगा यार ये पहले मेरे साथ हो चुका है। मैं आई वॉक थ्रू दिस ऑफिस, दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैं गूगल हैदराबाद गया था। मैंने कहा मैं यहाँ पे भी बैठा हूँ, फिर मैं एक सोफे पे बैठा था, मतलब इट जस्ट फ्लैश्ड अक्रॉस पेन्स ऑफ माई मेंटल फैकल्टीज। बट इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या हुई, जिस बंदे ने मुझे को ऑनबोर्ड करना था ही फेल सिक, वो नहीं आया। जिसको मेरे को लैपटॉप देना था दैट पर्सन वाज मिसिंग। जिसको मेरे को बैज देना था दैट पर्सन वाज मिसिंग। आई हैड टू मीट सम पीपल, नोबडी वाज देयर। आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग देयर, कोई था वहाँ पे? कोई भी नहीं था वहाँ पे। मैं वहाँ कुर्सी पे बैठा हुआ था, मैंने एक पैड उठाया स्टेशनरी कबर्ड से, हाँ. मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया रैंडम नोट। वो पैड अभी भी मेरे पास है, उस पर कुछ कुछ तो मैंने स्क्रिबल किया कि ये सब मैंने छोड़ा है, अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आई एम फीलिंग सो आउट ऑफ स्पेस, व्हाट शुड आई डू। एनीवेज आई टुक द 4 PM ड्रॉप एंड वेंट बैक टू होटल। पापा को मैंने बोला यार बॉस ऐसा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, तो ये ज्वाइन मैंने जो किया है ना, ये कुछ जची नहीं बात। पापा बोले क्या हो गया? उनको लगा कुछ ऑफिस में ऐसा वैसा तो नहीं है। मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, बट मजा नहीं आया. हाँ, मैंने कहा स्टार्स आर नॉट अलाइंड। तो पापा बोले ठीक है फिर। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? पापा बोले कि कुछ 2 ऐसे लोग जिनको तू ट्रस्ट करता है उनसे एडवाइस ले ले। तो आई कुड ओनली थिंक ऑफ वन पर्सन, हर नेम इज़ रोमोला बुटालिया। शी इज़ अ वेरी वेल नोन ऑथर एंड एन अथॉरिटी ऑन उत्तराखंड। शी इज़ ट्रैवल्ड ऑल अक्रॉस उत्तराखंड। एनीवेज शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई स्पिरिचुअल टीचर्स। तो उनको मैंने मैसेज किया। व्हाट्सएप वॉज इन वेरी अर्ली स्टेजेस बैक देन, 5-6 दिन में एक बार यूज़ होता था। अच्छा. तो शी एडवाइस्ड कि डोंट टेक डिसीजंस बाय हार्ट अनलेस यू फील ट्रूली कन्विंस्ड। तो मैंने अपने अंकल को भी कुछ एक ईमेल करी, मेरे यूएस में एक अंकल थे। एनीवेज मैंने रिप्लाईज दोनों के लिए, बट फिर शाम को मैंने पापा को बोला कि आई डोंट थिंक आई वांट टू गेट इनटू दिस। सी इट कैन बी वेरी फ्लिम्जी ऑल्सो। आपका पहला दिन है, आप 12 साल 13 साल बाद आए हो। इफ आई लुक बैक व्हाट वुड आई एडवाइस टू गौतम बैक देन, मैं कहूँगा यार टेक इट स्लो। तू 13 साल बाद आया है, तेरे ये प्लान्स थे, यू इन द मिडल आपने फिर से गूगल ज्वाइन कर लिया है। इट्स सेम कंपनी, सेम पीपल, होल सर्कल ऑफ थिंग्स अराउंड यू, राइट? एक हफ्ता काम करके देख लो, मे बी थिंग्स विल फॉल बैक। तो ऐसा मैं एडवाइस देता शायद जो उन लोगों ने मुझे दी। ओके. बट जैसे बोलते हैं ना कि ओनली यू नो कि क्या हो रहा है। यूं भी गुजर गई मेरी, यूं भी गुजर गई। तो जब वो गुजरती है ना, तभी आपको पता चलता है कि कैसी गुजर रही है और फिर आपको क्या करना है। तो मैंने अंदर से डिसीजन लिया। आई सेड चलो जैसा भी होगा, आई विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, आई एम एग्जिटिंग दिस पोजिशन। तो पापा को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है। एंड माई फादर बीइंग माई फादर, धर साहब कहते हैं कि भाई ठीक है, नहीं करना तो नहीं करो, नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड रियलाइजिंग कि भाई बेटा गूगल इंडिया को ज्वाइन कर रहा है, नंबर 1 कंपनी इन ऑल दैट। बट सी he has a very different way of, he believes कि one should grow like a tree, ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है।
एंड यू कैन ऑलवेज कम होम, जैसे मैंने शुरू में बोला था. एंड देन ही न्यू कि आप यूएस में आप पढ़ाई ठीक की थी, Right. यू ऑलवेज गुड बच्चा He इन एवरी trusted my सेंस. judgment. हाँ, See, सो ही न्यू दैट. you'll be amazed to know कि my father never questioned me or never asked me on the phone, especially जब मैं नया था यूएस में, कि बेटा कॉलेज में कौन सी डिग्री कर रहा है, कौन सी क्लासेस, जैसे नॉर्मल लोग पूछेंगे Yeah, अच्छा he बेटा इस never सेमेस्टर asked में you? कौन से क्लासेस ले रहे हो, कैसे रह रहे हो, कहाँ पे रह रहे हो, फ्लैट कैसा है, इंडियन पेरेंटल अच्छा. माइंडसेट होता है. अच्छा आप कौन सी जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब में क्या करते हो, कितनी सैलरी है. ही नेवर आस्क्ड मी, सो ऑल वी वुड डिस्कस इज रैंडम थिंग्स. Yeah. हाँ, आई शिट यू नॉट, बट अगर आप उनसे पूछोगे कि आपके बेटे ने कौन सी डिग्री करी, ही मे हैव टू स्ट्रगल, which is cool. I don't think I can ever be half the father that he was if I were to be a father, right? उस दौरान भी उन्होंने जो ट्रस्ट मेरे में दिखाया, बोले ठीक है, इफ यू डोंट थिंक दिस इज इट देन वॉक आउट बिफोर इट्स टू लेट. तो मेरा पर्पस था कि मैं 2 हफ्ते बाद नहीं करना चाहता था वो सीन. अब मेरे लिए ट्रिकी चीज़ क्या थी, विच कैन बी अ नाइटमेयर फॉर एनी प्रोफेशनल. उस बंदी को बोलना कि किसी को भी आपको बोलना कि यू हैव जस्ट जॉइंड without an interview, you have to tell your director ki why you cannot continue. That was mind boggling. So of course I gave a very personal reason which I will not get into on the microphone. Took some convincing. Some bridges were probably burnt. I thought ki I would never be able to join Google again. You live by the gun, you die by the gun, right? That was my Google Hyderabad story. It lasted 1 day. उसके बाद फाइनली उसके बाद आई जॉइंड अप Aurobindo Ashram in South Delhi. Aurobindo Ashram, other than its spiritual endeavors, it sponsors, at least back then, rural youth from all across India, and वो उनको train करते हैं in different work streams. For about 3 to 4 months, I was teaching English and music, and then there are volunteers passing through. I made friends with a guy called Hamid from Germany. A nice guy. We spent some good times there teaching together, obviously. वहाँ पे I met a very famous mridangam player, Shyam Sundar. He's no more. Genius. या. Genius musician. मतलब I can't describe. तो वो लोग वॉलंटियर कर रहे थे वहाँ पे. हाँ, वो भी वॉलंटियर कर रहा था मेरी Wow. तरह. He was in their own capacity. तो वो वहाँ पे भी स्टे में, मतलब it's like a waiting room, airport types, जहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, and you're meeting with them, learning from them. I met a lot of people. Some people I'm still in touch with. अच्छा, उसके बाद फिर आपने ये किया 4 महीने उसके बाद. उसके बाद I joined up an NGO called Chirag in Uttarakhand. So you went back to Uttarakhand. हाँ, उसके बाद थोड़ा टाइम में घर पे आया. उसके बाद I interacted with the different people who were working in social development sector. पहले आरोही था, then I joined up Chirag. Chirag है basically Central Himalayan Rural Action Group. Okay. CHIRAG. तो वो मैंने ज्वाइन किया. वहाँ पे मैं तकरीबन 1 साल था. वहाँ पे भी उनका प्राइमरी स्कूल है. वहाँ पे आई वाज टीचिंग इंग्लिश एंड म्यूजिक, एंड देन आई वाज वर्किंग इन देयर ऑफिस विद देयर स्टाफ ऑन एन अरे ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी बेस्ड, जिसके लिए दे कुड नॉट अफोर्ड टू हायर अ फुल टाइम एम्प्लॉय, राइट. Okay. तो लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स. तो उसमें तो मजा आया होगा. हाँ, वो अच्छा था. एंड देन आई वाज स्टेइंग इन अ विलेज कॉल्ड शीतला. मुक्तेश्वर एक बहुत फेमस हिल स्टेशन है उत्तराखंड में, नैनीताल से 1.25 घंटा दूर. मुक्तेश्वर से नीचे ही एक गांव है शीतला. वहाँ पे मैं था तकरीबन 10-11 महीने. I had a tiny room with my own balcony Yeah. in that village. Population was 29 back then. अब तो बढ़ गई है. सिर्फ 29 लोग रहते थे गांव में. पॉपुलेशन थी उस टाइम वहाँ पे. कुछ नहीं था वहाँ पे. सुबह मैं जाता था पैदल चल के जंगल के थ्रू तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर. शाम को वापस आता था उसी ट्रेल से. कभी कभी कोई जीप मिल गई, the day was lucky. I would hitch a What about hitch a food? ride. फूड वहीं पे मिलता था, उनका लोकल बंदा था. हाँ कैंटीन थी वहाँ पे, जो स्टाफ थोड़ा बहुत खाता था. अच्छा. And रात को समटाइम्स कोई लेपर्ड वहाँ से जाता था, आप किसी से सुनते थे. समटाइम्स अ फैमिली ऑफ जैकल्स वुड बी पासिंग बाय. तो इंटरेस्टिंग साउंड्स ऑफ जंगल केप्ट मी एंटरटेन्ड. एंड ऑफ कोर्स देयर वाज माय गिटार एंड रस्किन बॉन्ड. इस टाइम तक शादी नहीं हुई थी आपकी, राइट? नहीं, दिस इज 2013. बेसिकली गूगल एक बार ही ज्वाइन करने में भी लाइक इट्स अ ड्रीम, राइट? और आप हाउ यू वर एबल टू join Google for the third time? One is that you as a person technically you're strong, you know your stuff. और क्या गूगल को फर्क पड़ता है या किसी भी बड़ी कंपनी को फर्क पड़ता है कि ये बंदा ओवरऑल होलिस्टिकली डेवलप्ड बंदा है, तो इट बी अ गुड रिसोर्स फॉर अस? मेरे हिसाब से सभी कंपनीज को ऑनर करना चाहिए, नॉट जस्ट वर्क एक्सपीरियंस
in your own field, but you want people जिन्होंने ज़िंदगी को देखा है, Yeah, not yeah. खाली कि अपने काम को देखा है और Correct. क्लासरूम को देखा है. Correct. तो ज़िंदगी को जब आप देखोगे, then you learn and you grow as a person. Yeah. Extracurricular could mean volunteering. It could mean even having projects that have nothing to do with your job. अब वो हर कंपनी में पॉसिबल नहीं होता है. Yeah. जैसे गूगल में यू कैन वर्क ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो आपकी इमीडिएट टीम के बाहर हैं. Okay. ठीक है, जैसे आपने 1.5 साल गांव में पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया. इन दैट केस आई वाज एक्चुअली यूटिलाइजिंग लॉट ऑफ गूगल टेक्नोलॉजीज लाइक गूगल डॉक्स, Oh. गूगल एप्स. तो दैट boosts your overall profile. So did you talk about that in your interview? या जो भी था. नहीं, वो तो प्रिंट में ही था मेरा. मैं जो वॉलंटियरिंग का मैंने लिखा था उसमें लिखा हुआ था. नहीं, but did they Obviously, ask you? it came up in the interview. हाँ, it came up in the interview. Of course, if I am applying as a fresher, उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं होगा. हाँ. बट मिडिल पाथ में अगर आप होगे तो it definitely adds color to your resume. So do they ask कि आपने गैप क्यों लिया? Because it's मुझे लगता है कि आउटसाइड इंडिया इट्स अ नॉर्मल थिंग टू सबैटिकल लें और ये सब. Absolutely. तो दे आर ओके विद इट ऑब्वियसली. मेरा गैप पर से नहीं था बिकॉज आई वाज डूइंग समथिंग और एज इन वही हाँ, see, प्रोफेशनल गैप था. हाँ, आई डिड नॉट हैव अ फुल टाइम जॉब. Yeah, yeah. उसमें गूगल में आई वाज नॉट क्वेश्चन बिकॉज इट वाज देयर. वहाँ पे उन्होंने डेफिनेटली पूछा. जैसे वन ऑफ द इंटरव्यूज आई रिमेंबर मैंने दिया था एक गांव से, उत्तराखंड के. उस टाइम आई वाज स्टेइंग विद द सेंट ऑन अ स्पिरिचुअल रिट्रीट. इट्स अ वेरी रिमोट विलेज कॉल्ड पलड़ा इन उत्तराखंड. वहाँ पे गांव में मैं था और उस बंदे का आई रिमेंबर कॉल था 30 मिनट्स का. एंड फॉर 20 मिनट्स ही ओनली टॉक्ड अबाउट माई वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस इन दी NGO कॉल्ड चिराग. 5-10 मिनट उसने काम की बात करी होगी. वाओ. तो इट ऑब्वियसली केम अप. तो वो बातचीत तो हुई उस पर. एंड आई एम होपिंग और आई एम assuming they liked it. That's how they decided to pick me. क्या उनका ये सवाल था कि क्या तुम अब छोड़ोगे तो फिर हम क्या चौथी बार ज्वाइन करोगे? See, it's hilarious because I remember जो मेरा लास्ट इंटरव्यू था was with my hiring director. हाँ. तो उसने डायरेक्टर जब इंटरव्यू लेता है तो मोस्टली क्वेश्चंस आर अराउंड यू. तो दे ओपन अप द फील्ड कि आपको क्या क्वेश्चन है. उसने एक ही सवाल पूछा था, तो व्हेन आर यू लीविंग नेक्स्ट. वही तो. मैंने कहा आई डोंट नो, can't promise, but as long as I am with the team I'll give my 200%. So they respect your honesty. Obviously. Did you say actually? I don't know. हाँ, मैंने कहा I can't promise you when I am leaving. I probably not will leave tomorrow, but वो जब भी होगा तब भी होगा. I don't come with a 5-year plan. So मुझे नहीं लगता काफी सारी companies would be okay with that thing in an They interview. will not be okay, but it's Google, right? It's Google. That's हाँ, of वही course, मेरा अगर सवाल था. typical company जैसे if I am interviewing in Airtel or HCL, हाँ, वो नहीं लेंगे. I will say no. I will, this time I'm really I'm all excited to yours. join. हाँ, तो यू रेज्ड इन हरियाणा. जी जी. एक छोटे शहर में आप पले बड़े. हम्म. वहाँ के वैल्यूज़, वहाँ के हिसाब किताब, वहाँ के चीज़ें सीखी आपने. एंड देन यू मूव टू US. वहाँ जाके तो ऑब्वियसली इट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड. करेक्ट. तो क्या हार्डशिप्स आई और कैसे आपने उनको ओवरकम किया? तो उस दौरान क्या हुआ, कुछ चीज़ें फॉर एग्जांपल जैसे मैं जब पहुंचा वहाँ पे 2 months इनटू माय स्टे, जैसे मेरे को कॉलेज के लिए अनरोल करना था. कॉलेज था वाज अबाउट, यू कैन कॉल इट, आई डोंट नो, 15 miles अवे, 10-15 miles अवे, जहाँ पे मेरी आंट रहती थी. कुछ टाइम मैं अपनी आंट के साथ था, एक साल तक. विंटर्स भी होती थी वहाँ पे, जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे 6-7 महीने विंटर्स रहती थी, 5 महीने तक स्नो रहती थी. वो मैंने कभी देखा नहीं था. तो आंटी को मैंने बोला यार कॉलेज के लिए एनरोल करना है, कैसे जाऊँ. आंटी बोली गौतम यहाँ पे नोबडी विल ड्राइव यू, दिस इज़ नॉट इंडिया, यू हैव टू फिगर आउट, गो टू द नियरेस्ट बस स्टॉप. वहाँ पे ब्रोशोर लगे होते हैं, फिगर आउट कौन सी नंबर बस लेके आप उस पॉइंट तक पहुँचोगे, फिर वहाँ पे कैसे बस चेंज करनी है, रीच द कॉलेज, फाइंड आउट द एडमिशंस स्पॉट, एनरोल योर सेल्फ, पे द मनी एंड देन कम बैक. मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई. एनीवेज मैं किसी तरीके से निकला. फिर धीरे धीरे ही आदत पड़ती है. जब आप खुद कुछ करते हो ना तभी आपको आदत लगती है. इट्स लाइक ह्यूमन इज़ अ क्रीचर ऑफ हैबिट. तो फिगर आउट किया धीरे धीरे. इट टुक सम टाइम. कुछ गलतियाँ भी करी, कुछ हड़बड़ाहट भी हुई जो हर एक को होती है. ठंड भी थी ऊपर से. सुबह आई रिमेंबर 6 बजे मैं जब जाता था बस पकड़ने के लिए, इट यूज्ड टू बी -30 Celsius विद विंड ब्लोइंग एट 60 miles an hour, विंड चिल फैक्टर अबाउट -45 Celsius. तो उसमें आपको पहले 10-15 मिनट बस स्टॉप तक जाना है, बस पकड़नी है. कुछ चीज़ों में मैं साइकिल चला के भी जाता था, फिर साइकिल को बस के आगे लगाता था, फिर वो साइकिल एक स्टोर के आगे पार्क करता था, फिर एक और बस बदलता था, फिर कॉलेज जाता था, फिर वहाँ पे काम भी करता था. देन आई वुड कम बैक इन द इवनिंग. तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट आई वाज स्टिल लिविंग विद माय आंट, इट वाज चैलेंजिंग, नो डाउट अबाउट इट.
यूएस में क्या है, मेजॉरिटी ऑफ और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यूएस अदर देन मे बी 1 or 2 स्टेट्स लाइक न्यूयॉर्क एंड अनदर, अगर अनलेस यू हैव अ कार, आप यू कैन नॉट मैनेज ऑन योर ओन। तो कार जो है वहाँ पे ज़रूरी है डिस्टेंसेस के लिए, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेट्स से इट्स नॉट दैट ग्रेट, बस उस जहाँ मैं रहता था वहाँ ठीक था। मेरा भी एक कजिन है, वो यूएस में रहता है, न्यूयॉर्क में, पिछले 8-10 साल से। वो बंदा अभी तक गाड़ी नहीं खरीदा। ही सेड आई डोंट रिक्वायर अ कार। वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। बोलता जब भी मुझे चाहिए होती है तो मैं वो रेंटल वाली दे देता हूँ, एब्सोल्युटली, $100 ऐसा जो भी है, वट एवर अमाउंट। तो बोलता है मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है गाड़ी की। बिल्कुल। मेरा कज़न है, उसके पास लाइसेंस ही नहीं है, इट इज़ ब्लडी 50 years ओल्ड। ज़रूरत ही नहीं है, बट वो खाली न्यूयॉर्क में ही चल सकता है, एनवाईसी में, एज फार एज आई नो। या आप मिडवेस्ट में आ जाओगे, कहीं भी आ जाओगे, फिर कार नहीं है तो खत्म है वहाँ। खत्म। चीज़ें तो ऑलमोस्ट वैसी ही होंगी अभी भी, सी लेट ट्रांसपोर्टेशन मी या टेल यू दिस, कम्युनिकेशन वाइज। अमेरिका जो जाते हैं कुछ दो एक तरीके के लोग जाते हैं। अंडर ग्रेड करने कोई नहीं जाता जैसे मैं गया था, बिकॉज आई वेंट ऑन ए ग्रीन कार्ड। बहुत कम, हिंदुस्तान बहुत से जो लोग जाते हैं या तो नौकरी के लिए जा रहे हैं या तो या फिर masters मास्टर्स के करने जा रहे हैं। लिए। या ठीक है, मास्टर्स करने जो जाता है उसका गोल भी यही है कि मैं वहीं पे जॉब करके वहीं सेटल हो जाऊँ। आप यहाँ पे, मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो 35-35 साल में, मम्मी मेरा पैंट कहाँ है, मेरा वो कहाँ है। आई एम नॉट स्टीरियोटाइपिंग, दैट इज़ द वे थिंग्स आर। या मे बी उसमें कोई पॉजिटिव होगा, मुझे कुछ नहीं दिखता। एंड द गुड थिंग फॉर मी इज़ माई फादर एंड माई मदर ऑलवेज रेज्ड मी इन दैट वे। मैं जब से 4-5 साल का था, आई न्यू एवरी सिंगल थिंग दैट वॉज हैपनिंग इन माई हाउस। एट द एज ऑफ 6 मेरे को चाय भी बनानी आती थी, मुझे वॉशिंग मशीन भी चलानी आती थी, मुझे आयरनिंग करनी भी आती थी, मुझे सब कुछ आता था। या And by the time I was in 9th grade, I was doing everything from operating washing machine to ironing clothes to doing dishes. तो हमारे घर में कभी भी वो नहीं था कि भाई ये सब नहीं करना है, वो सब नहीं करना है। दैट इज़ वाई इट वॉज स्लाइटली ईजियर फॉर मी। यहाँ पे जाके जिन लोगों को शौक लगता है यूएस में, देयर आर पीपल जिनको चाय भी बनानी नहीं आती है। आई एम नॉट सेइंग कि वो लड़का है कि लड़की है। हाँ, ऑब्वियसली या हाँ, ऑफ कोर्स मेल्स का थोड़ा ज़्यादा है इंडिया में, बीइंग पेट्रियार्कल, स्पेशली इन द नॉर्थ परहैप्स। अमेरिका से आप यहाँ पे जब वापस आए तो क्या चीज़ें थी जो आपको वहाँ की आप अभी भी मिस करते हो? I don't know if I would say I miss it, but अगर it's like I recollect those things. कभी कभी मेरे को flashbacks आते हैं, I relive those days, days of utter silence। ठीक है, जहाँ पे जैसे मैं रहता था मिशिगन में, मतलब आवाज़ ही नहीं आती थी किसी की। दैट इज़ जस्ट मी। लॉट ऑफ पीपल कांट, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो कहते थे यार तू कैसे रहता है यहाँ पे, मेरा तो सर घूम जाएगा अगर मैं किसी की आवाज़ ना सुनूँ। ठीक है, आई यूज्ड टू स्टे ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ टाउन। आई रिमेंबर आई नेवर हैड अ रूममेट इन कॉलेज ऑल्सो। आई पेड एक्स्ट्रा रेंट, आई वर्क 2 jobs। आई सेड बॉस मैं शेयर नहीं कर सकता, मुझे अपनी प्राइवेसी चाहिए। बिल्कुल। आई हैव टू राइट, आई नीड फाइंड टाइम टू राइट, रीड माई बुक्स, ये जो भी करना था, म्यूजिक करना था। तो दैट टुक मी टू स्लाइटली अवे फ्रॉम द मेन सिटी। यहाँ पे रेंट्स थोड़े कम थे, मेरा ड्राइव टाइम बढ़ गया, बट वहाँ पे साइलेंस था। दैट इज़ हाउ आई वॉज वायर्ड। तो जो साइलेंस था और अपनी प्राइवेसी थी, दैट आई चेरिश्ड। तो आई वुड से as little disturbance and as little investment time wise in the mundane things, those two things top my list of US। जैसे हिंदुस्तान में हमारे कहते हैं, एक पुरानी 80s की मूवी का डायलॉग है कि इंसान जो है रोजी रोटी के चक्कर में ही मर जाता है, आम इंसान। अब 80s की बात है, अब थोड़ा लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है, या बट जो आम इंसान है वो अभी भी वही है हिंदुस्तान में। आम इंसान की बात मैं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल लाइक यू एंड आई वर्क इन गूगल। या 6 बजे मुझे 7 बजे कैब लेने आ रही है, ड्रॉप करने आ रही है। आई एम नॉट एन आम इंसान बाई एनी मेजर। यस ठीक है, जो आम इंसान है उसके लिए ज़िंदगी अभी भी वही है। यस ठीक है, इट इज़ वेरी हार्ड। यस तो जब आप रोज़ी रोटी और बसों के चक्करों में ही रह जाओगे तो यार ये बाकी चीज़ें डेवलप और ये परसूट ऑफ हैप्पीनेस, ये सब ना उन लोगों के लिए इट विल नॉट मेक सेंस, बिकॉज दे आर एट द बेसिक। बट दैट इज़ द सर्कल ऑफ लाइफ। अगर मैं अपनी बात करूँगा तो हाँ, मतलब आई रियलाइज़ कि हिंदुस्तान में, इंडिया में काफ़ी टाइम चला जाता है ट्रैफिक में, ड्राइव में, डे टू डे अफेयर्स में। कभी सॉकेट फेल हो रहा है, कभी पानी नहीं आ रहा है, कभी मेड नहीं आ रही है, कभी सफाई नहीं हो रही है। आई पर्सनली फील, अगर मैं आर्टिस्टिक परसूट्स की बात करूँ, दिस इज़ जस्ट माई वेरी पर्सनल बायस्ड ओपिनियन, आर्टिस्टिक परसूट्स और स्पिरिचुअल परसूट्स यूएस में, if you manage your time well, endless opportunities। या
तो आई डिसाइडेड टू ट्राई शादी.com. आई ट्राई टिंडर. टिंडर हाँ शादी के लिए. हाँ, मैंने कहा देखते हैं. उस टाइम टिंडर वाज नॉट नोन फॉर हुकअप्स, जो अनफॉर्चुनेटली अब उसकी हालात हो गए हैं, एज माय फ्रेंड्स टेल मी.